Hi everyone, welcome to this video. So this video, as you can see on the board, this video is all about chromatography. Now chromatography is a subtopic of the part of the topic purification of organic compounds. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको मिल जाएगा, वो वाला वीडियो आप चेक कर लीजिए. प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन वीडियो के जो मेथड्स हैं वो मेथड्स में लास्ट पे आता है chromatography. So since chromatography is a very crucial topic for your upcoming JEE or NEET exam or even CT exam, so that's why I decided to make it in a separate video. So this is a separate video totally dedicated to chromatography. But इसके पहले फिर से आप वो organic compound का separation वो video देख लीजिए, purification. Now let's come to chromatography. So this is a part or a method of organic purification. कोई भी आपको purification के लिए mixture दे दिया जाए and you have to purify, you have to separate it out. You can use several methods including distillations, fractional crystallizations, you can use differential extractions, but chromatography is one of them. So let's understand what is chromatography, what are the uses of it. So first, to separate mixture, as I said, if I give you a mixture of 2 or 3 compounds, different organic compounds, impurities, you can separate it out by using this method. To purify compound, so suppose if you are having impurity inside, so you can remove this impurity using this one. To test the purity, how much purity is there, what is the percentage impurity or percentage purity, you can calculate using this method, which is chromatography. Now this chromatography is categorized into 2 parts: adsorption chromatography, partition chromatography. In your syllabus, adsorption is again subcategorized into 2 parts: column chromatography and TLC. TLC is called thin layer chromatography. We will understand one by one. So let's move to the next part, that is column chromatography. So before going to column chromatography, as we can see, there is some basic for chromatography you need to understand. So chromatographic technique पे we use 2 things. One is called stationary phase, one is called mobile phase. इसके बाद से मैं सिर्फ इनको stationary phase या mobile phase नाम से बोलूँगा. You need to understand. So stationary phase जिसके थ्रू जाते हैं and mobile phase is a solvent जो compound को लेके जाते हैं. Okay, stationary phase can be of solid, of liquid. Mobile phase can be of liquid, of gas. Okay, let's move to the next part, that is we will start with column chromatography. You can see a diagram in this, right? So this is column chromatography. This is a part of adsorption chromatography. Now you know what is the basic difference between adsorption and absorption. Absorption is a bulk phenomenon, matlab inside the bottle, if you have water bottle, inside the water, that is called absorption, and at the surface of the water it is called adsorption. So it is a surface phenomenon and absorption is a bulk phenomenon. But here we are not bothered about the bulk phenomenon, we are only bothered and curious about the surface phenomenon, which is adsorption. Now let's understand what is column chromatography. Before that, I have taken a column. So this is a column, a glass column. Inside that I have a segment, and this segment is nothing but stationary phase. As I mentioned, stationary phase is one through which the compound moves, right? So ये है stationary phase जो कि किससे बना है, सिलिका जेल या एल्यूमिना. That means ये है क्या, solid, right? So this one is solid. As I said, stationary phase could be solid. ये सॉलिड एक स्टेशनरी फेज है जिनमें सिलिका जेल आपने देखा होगा, मेडिसिन के बॉटल पे छोटा सा पैक आता है ना, वो सिलिका जेल होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बर. सो ये स्टेशनरी फेज है. एंड ये जो है ना, दिस पोर्शन, ये है मिक्सचर ऑफ ABC. सपोज इफ आई हैव गिवन यू 3 कंपाउंड्स का एक मिक्सचर, दैट इज ABC. सो मिक्सचर आपको यहाँ पे लेना है, ठीक. इनके ऊपर आपको थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड करना है. व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्वेंट? दैट्स नथिंग बट द मोबाइल फेज that will help the compound to move, right? That is called mobile phase. तो ये solvent मैंने थोड़ा सा डाल दिया. Now we know different compounds are having different extent of adsorption. मतलब कोई ज़्यादा adsorb होता है liquid में, कोई कम adsorb होता है. जो ज़्यादा adsorb होगा वो पकड़ के रख देगा liquid उनको, जो ज़्यादा कम adsorb होगा वो जल्दी जल्दी निकल जाएगा, right? So here as you can see, यहाँ पे आपने एक mixture लिया था ABC का. As soon as you add the solvent will elute the low adsorption part first. So यहाँ पे क्या हुआ, ABC का separation हो गया, totally separation हो गया. Based on what? Based on extent of adsorption. Extent of adsorption. एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, इनसे बेस होके ABC का सेपरेशन हो गया. एंड क्या होगा, ये C पहले से आपको यहाँ पे मिल जाएगा. जैसे मिल गया, सेपरेट दिस आउट, ये कॉनिकल फ्लास्क अलग कर दो, फिर न्यू कॉनिकल फ्लास्क लगाओ, उनमें आपको B मिल जाएगा. थोड़ी देर बाद न्यू कॉनिकल फ्लास्क लगाओ, A मिल जाएगा. सो सी, यू हैव स्टार्टेड विद अ मिक्सचर ऑफ ABC, बट ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड ड्यू टू दिस कॉलम,
आपको अलग अलग 3 कॉनिकल में अलग अलग 3 कंपाउंड मिल जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. सो क्रोमेटोग्राफी इज अगेन ए पार्ट एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी which is called thin layer chromatography. This is the most important one or the most crucial one. As you can see here, we will not use a column. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक ग्लास प्लेट. अब सबके पास होती है ना ग्लास प्लेट. जस्ट यूज अ ग्लास प्लेट एंड coat this glass plate with a 0.2 millimeter, ज्यादा नहीं, 0.2 millimeter of silica gel. सिलिका जेल का एक लेयर बना दो. लेयर बना के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, बेस लाइन. बट बिफोर दैट टेल मी व्हाट इज स्टेशनरी फेज. सो स्टेशनरी फेज इज नथिंग बट द ग्लास विद द सिलिका जेल. दैट मीन्स ये है स्टेशनरी फेज, ये खुद ग्लास प्लेट खुद स्टेशनरी फेज है एंड सिलिका जेल. सो ये हो गया सॉलिड. द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड. सो दिस विल बी द सॉलिड फेज, राइट. व्हाट अबाउट द मोबाइल फेज, दैट विल कम लेटर. सो इसके पहले ये जो ग्लास प्लेट था, ग्लास प्लेट इज कोटेड विद 0.2 मिलीमीटर ऑफ थिक लेयर ऑफ किसका, सिलिका जेल का. ये हो गया स्टेशनरी फेज. इनमें हमें क्या देना है, वी हैव टू ड्रॉ अ बेस लाइन. एज यू कैन सी दिस वन इज कॉल्ड बेस लाइन. कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर. बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर वी हैव टू ड्रॉ अ बेस लाइन. एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड ऊपर भी थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर के गैप पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ ग्लास प्लेट, कोट इट विथ सिलिका जेल. 0.2 मिलीमीटर थिक सिलिका जेल इज मोर देन इनफ. नाउ दोनों बेस लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे, नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर. नाउ एज सून एज यू हैव ड्रॉन ऑल दिस, आपको एक स्पॉट देना है. दिस वन इज कॉल्ड स्पॉट. कैन यू सी द कलर्ड स्पॉट, द येलो कलर्ड स्पॉट. सो दैट स्पॉट इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड्स यू हैव टेकन. जस्ट लाइक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, लास्ट में आपने क्या लिया था, एक मिक्सचर लिया था ना. यहाँ पे भी आपको एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स लेना है. बट दिस टाइम ये जो कंपाउंड्स का मिक्सचर है ये कलर्ड होना चाहिए, कलर्ड कंपाउंड. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन, राइट. हम प्रोटीन लेते हैं जो कलर्ड होती है, जनरली हम कलर क्रिएट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने एक मिक्सचर लिया, स्पॉट लिया, जो 3 कंपाउंड का या 2 कंपाउंड का मिक्सचर है ना. हमको क्या करना है, ये पूरे चीज को उठा के एक बीकर में डाल दो एंड बीकर में थोड़ा सा आपको सॉल्वेंट लेना है. एंड दिस सॉल्वेंट इज नथिंग बट द मोबाइल फेज. एज आई सेड, मोबाइल फेज कुड बी लिक्विड, राइट. सो यहाँ पे डाल दो. As soon as you pour it inside the solvent, that is inside the liquid, you will see the liquid will come up. Why? Because the reason of capillary action. आपने physics में पढ़ा होगा capillary action, right? So capillary action is the reason for this upper movement of the liquid. तो ये मूव होता रहेगा एंड विद दिस लिक्विड जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही क्या होगा, ये जो डॉट था आपके पास स्पॉट, ये स्पॉट डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट कलर में. क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स थी, राइट. तो ये देखो कलर डिफरेंट होके एक ब्लू कलर ऊपर आ गया. मतलब जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही कलर लेके ऊपर जाता रहेगा. देन एक ब्लू कलर आ गया. ऐसे आपको अगर 4 कंपाउंड का मिक्सचर बनाना है तो यू विल सी 4 डिफरेंट डॉट्स. एक ब्लू, एक ग्रीन, एक रेड, एक येलो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स दिखेगा आपको. हो गया. नाउ ब्रिंग दिस आउट. आप इनको बाहर निकाल लो. देन इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है छोटा सा. क्या कैलकुलेशन? बहुत ही इजी. ये जो बेस लाइन था, बेस लाइन से जहां पे आपका स्पॉट आया है उनको आप एक्स ले लो. बेस लाइन से जहां पे स्पॉट आया है, कोई भी स्पॉट रैंडम लिया, ब्लू स्पॉट ले सकते हो, येलो स्पॉट ले सकते हो, इट्स अप टू यू. ना आपको ये वाला जो डिस्टेंस है ये x है एंड इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो y है. कैन यू सी y इज फिक्स्ड. आप जो 2 लाइन क्रिएट करोगे वो तो फिक्स ही रहेगा. सो y इज फिक्स्ड. सो x विल गेट चेंज्ड, राइट. x चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द स्पॉट्स. अगर येलो स्पॉट्स है तो येलो तक जाएगा x, अगर ब्लू है तो ब्लू तक, अगर ग्रीन आए तो ग्रीन तक, राइट. तो ये x y. Now you have to do x by y. x by y कर दो, आपको ये फैक्टर मिल जाएगा. That is called retardation factor. And based on this retardation factor, you can separate out all the compounds. That means initially आपको glass plate लेना था, एक dot देना था, pour it inside the solvent. Solvent वो dot को different color में divide कर देगा. Now just find x by y. तीनों का ratio निकलेगा. जितने भी colors है, येलो के लिए एक x by y निकलेगा, ब्लू के लिए और एक एक्स वाई, ग्रीन के लिए और एक एक्स वाई. सो इन दिस केस, इन दिस वे यू विल फाइंड आउट डिफरेंट रिटार्डेशन फैक्टर एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सेपरेट इट आउट, राइट. तो ये हो गया बेस्ट सेपरेशन, दैट इज TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. सो ये थिन लेयर एंड द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दिस बोथ आर द पार्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. But we have one more part and the last part, that is called partition chromatography. So we will go to the next part.
that is called partition chromatography. So partition chromatography is exactly same to the thin layer chromatography, but better. Why? Because cheaper option, we all should go for cheaper option, right? So यहाँ पे cost cutting भी होगी थोड़ा सा. cheaper option क्यों? Because यहाँ पे ना हमें glass plate लेने की जगह हमें just एक पेपर लेना है. एक पेपर मिलता है मार्केट पे, दैट इज कॉल्ड सेलुलोज पेपर. सो यू हैव टू जस्ट बाय दैट पेपर. वो बहुत चीप मिलता है, बट ग्लास प्लेट फिर भी थोड़ा सा महंगा मिलता है, राइट? कॉस्टली होते हैं. तो सेलुलोज पेपर विल टेक विच इज द स्टेशनरी फेज, दैट इज द सॉलिड वन, राइट? सेलुलोज पेपर. सो स्टेशनरी फेज इज सॉलिड. अगेन यू मेक द बेस मार्क, बेस लाइन एंड अपर लाइन मार्क कर दो. एक स्पॉट दे दो, आपके पास जो मिक्सचर है उनको स्पॉट में यहाँ पे टच करा दो एंड पोर इट इनसाइड द सॉल्वेंट. अगेन कैपिलरी एक्शन, सॉल्वेंट ऊपर आएंगे एंड ये क्या होगा, स्पॉट डिफरेंट कलर में डिवाइड्स हो जाएगा. सो लेट्स से आपको एक कलर यहाँ पे मिल गया, लेट्स से आपको एक कलर यहाँ पे मिल गया. तो ऐसे आपको डिफरेंट कलर्स आते रहेंगे. नाउ यू नो द कैलकुलेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज कॉल्ड एक्स, और y तो ऊपर से नीचे लाइन तक दिस इज y. सो y इज फिक्स्ड, y इज ऑलवेज फिक्स्ड. x डिफरेंट होगा, इसके लिए एक x होगा, इसके लिए एक x होगा, इसके लिए एक x होगा. So you will get 3 retardation factors RF, and based on that you can conclude that these are 3 different compounds, right? So this is all about partition chromatography. So we have column, we have thin layer, we have partition. Although this paper or partition chromatography and the thin layer chromatography are exactly same, but you have to go with the cheaper option or cost effective option. So that is this one, क्योंकि आपको पेपर लेना है, उसमें आपको ग्लास प्लेट चाहिए था, उनके ऊपर आपको सिलिका जेल का लेयर भी लगाना था. यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट सेलुलोज पेपर कहीं भी मार्केट से खरीद के ये कर सकते हो आप लैब में. सो दिस चीपर ऑप्शन, सो वी शुड गो विद दिस. So this was all about your chromatography, and again was that video of purification of organic compounds. Then come to this directly मत आओ, वो देख के आप अगर आप आओगे तो आपको पूरे समझ में आएगा कि क्यों हम कर रहे हैं ये सब, what is the need, what is the function, right? So subscribe for more videos, and we will see the next video in next few videos. Thank you so much.